Intensity of electric field by any electric dipole. Dear student, we have already read what is the intensity of electric field. Total electrostatic force acting on any unit charge in any electric field is called intensity of electric field, which is a vector quantity and represented by vector E, and is used for defining, explaining electric field produced by any charge. किसी चार्ज के कारण प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायर्ड होती है. हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण 1/4πε0 के Q/R² डिराइव हुई थी. इट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी पॉइंट चार्ज. अगर कोई पॉइंट चार्ज हो तो वो इतनी इंटेंसिटी क्रिएट करता है, जहां Q जो है अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है एंड R इज द डिस्टेंस वेयर वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो किसी चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल 1/4πε0 Q/R² हम लोग डिराइव किए हुए हैं. उसके बाद हम लोग डिराइव कर रहे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल. Since electric dipole contain two charges, hence total vector sum of intensity of electric field produced by each charges of the dipole will be resultant intensity of the electric field produced by electric dipole. मतलब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज रखता है और इसलिए दोनों चार्जों के कारण जितना इंटेंसिटी बनती हो उस इंटेंसिटी का वेक्टर सम अगर निकाला जाए, उस इंटेंसिटी को अगर हम वेक्टर वे में ऐड कर लें तो जो इंटेंसिटी आती है दैट विल बी रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल in some conditions. There are two conditions special which by which we calculate intensity of electric field produced by an electric dipole. First condition is in axial state, second condition is in coaxial state. हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी मालूम करनी हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज रखता है, दोनों चार्ज के कारण अलग अलग जो भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हो उसको वेक्टर तरीके से ऐड कर लो तो वही डाइपोल के कारण फाइनल इंटेंसिटी बनेगी. लेकिन फाइनल इंटेंसिटी डाइपोल के कारण दो कंडीशन में हम लोग निकालते हैं. कभी जो है एक्साइल स्टेट में निकालते हैं और कभी कौन से स्टेट में निकालते हैं बेटा, इन एक्साइल स्टेट में. देयर आर टू प्रोसेस for calculating intensity of electric field by an electric dipole. A special process. First is axial state and next is coaxial state. और आज हम लोग बेटा coaxial state में intensity of electric field पढ़ेंगे या जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे. दोनों नाम इसका ही है और आप जो है एक्साइल स्टेट की इंटेंसिटी इसके पहले जो है आप पढ़ चुके हो. ठीक है. Intensity of electric field. Look, intensity of electric field by any electric dipole. Intensity of electric field. Look the board. Electric field by any electric dipole intensity of electric field by any electric dipole. सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन हम निकाल चुके हैं. इन कोएक्सियल स्टेट या इसी को क्या बोलते हैं बेटा, और एट इक्वेटोरियल पॉइंट. Intensity of electric field produced by an electric dipole in equatorial point या in coaxial state. Now from the heading it is clear there will be any electric dipole. So let us suppose that
an electric dipole AB having charge minus q and plus q means charges of same magnitude but of opposite nature placed at A and B at a distance 2l where AB will be axis and its length will be 2l. तो इतना सपोज कर ले रहे हैं बेटा, सपोज कर ले रहे हैं. लुक द फिगर, हियर इज अ चार्ज माइनस q. Look the figure everybody. Here is a charge minus q placed at point A and another charge is at some distance from this charge and having same magnitude but of opposite nature means plus q. Now you have two charges placed at A and B. One is at A and another is at B. One is minus q charge, another is plus q charge. Both are placed nearer, hence forming electric dipole. ये हमारे सामने इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया. अब बेटा ये इलेक्ट्रिक डायपोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है चार्जों को, इसे आप सभी लोग जानते हो कौन सी लाइन है ये, एक्सिस ऑफ द डायपोल. इसका मिड पॉइंट सपोज करें, here is the midpoint of the axis of the dipole, hence it is center, and its length means distance of plus q charge from the center if is l, ये l हो, then distance of minus q charge from the center also will be l. ओके, तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक डायपोल आपके सामने बना हुआ है. एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है. हमको बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इसी जो है डायपोल के थ्रू, वो भी इक्वेटोरियल स्टेट में या कोई जेल स्टेट में. अलाइन which is perpendicular bisector of this axis is called coaxial line. मतलब कोई एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो इस जो है लाइन को बाइसेक्ट भी करती हो, मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो, और परपेंडिकुलर भी हो, मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. उसी लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा? कोएक्सियल लाइन. ठीक है, तो कोएक्सियल लाइंस मीन्स a line will divide it into two equal part and perpendicular on this line also. तो देखो एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं पासिंग थ्रू O. O से क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि तभी तो बाइसेक्ट करेगी, दो डबल पार्ट में डिवाइड करेगी तभी तो. तो यहां देखो जरा, इट इज अ कोएक्सियल लाइन बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ओके, AB को दो पार्ट में इधर उधर डिवाइड भी कर रही है, परपेंडिकुलर भी है, ये जो है 90 डिग्री एंगल पर भी है. इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यू कैन से इट इज कोएक्सियल लाइन. तो ये कोएक्सियल लाइन है और लेट अस सपोज दैट देयर इज अ पॉइंट M ऑन दिस कोएक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस R from O and we have to find out intensity of electric field produced by this electric dipole at M. नहीं समझे बेटा? माइनस q और प्लस q चार्ज से बना हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल AB है. AB की फाइनल लेंथ 2l दिखाई दे रही है, सेंटर O दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OM दिखाई दे रही है, कोई जेल लाइन है. इसी लाइन पर सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट M है. तो ये कोई जेल स्टेट का पॉइंट हुआ क्योंकि कोई जेल लाइन पर है, और हमें इसी कोई जेल पॉइंट M पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. याद करिए इसके पहले वाले डेरिवेशन में जब जो है AB एक्सिस थी, AB की एक्सियस लाइन में कोई एक पॉइंट M था, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर था? R डिस्टेंस पर था, जहां हम लोग जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे. ठीक है, तो यहाँ कोई जेल लाइन में कोई पॉइंट M है जहां पर हमको इंटेंसिटी जो है फाइंड आउट करनी है. लेकिन बेटा यहाँ इस केस में इंटेंसिटी थोड़ा मन लगा समझिएगा, क्योंकि ये डेरिवेशन हम कह रहे हैं टफ है, तो इसका मतलब श्योरली टफ होगा. तो ये इतना फिगर समझ में आ गया बेटा? इलेक्ट्रिक थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा बेटा, इसलिए अच्छे से आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्रिएट नहीं होगी प्रॉब्लम, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ. इलेक्ट्रिक डायपोल AB बना, नो प्रॉब्लम.
कोई जेल लाइन बनी, एकदम एक्सप्लेन कर दिया कोई जेल लाइन क्या है। मैथ पढ़ते हो, बायो वाले बच्चे हो, वो भी क्लियर हो जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए लाइन व्हिच इज बाइसेक्टिंग दिस लाइन, माने टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हो, और परपेंडिकुलर भी हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसी को कौन सी लाइन कहते हैं बेटा, कोई जेल लाइन। ओके, तो अब इस लाइन पर सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट एम है, यहीं पर हमें इंटेंसिटी मालूम करनी है। आप कॉन्सेप्ट याद करो, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया है कि जो बोथ चार्जेज होते हैं दोनों सेपरेट सेपरेट इंटेंसिटी बनाते हैं, और उस इंटेंसिटी को हम किस तरह से ऐड कर लेते हैं, वेक्टर्स हम निकाल लेते हैं, हमारे पास फाइनल इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय दैट इलेक्ट्रिक डायपोल, यही तो बताया है बेटा। तो अब जो है पॉइंट एम पर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, दोनों चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी कैलकुलेट करें और उसको हम वेक्टर तरीके से ऐड कर लें। तो देखो लुक, प्लस क्यू चार्ज एम पर इंटेंसिटी बनाएगा बेटा, माइनस क्यू चार्ज भी एम पर इंटेंसिटी बनाएगा, और उन इंटेंसिटीज को वेक्टर्स हम करेंगे। लेट अस सपोज दैट इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज एट एम इज वेक्टर E1। मान लेते हैं इस चार्ज के द्वारा कितना इंटेंसिटी बनती है, वेक्टर E1, और इस चार्ज के कारण कितना इंटेंसिटी बनती है, वेक्टर E2। देखो बेटा, कल की क्लास में आपको एक चीज बताए थे कि प्लस चार्ज हमेशा पॉइंट की ओर इंटेंसिटी बनाता है, बताए थे ना बेटा, और माइनस चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये प्लस चार्ज पॉइंट एम पर इंटेंसिटी बना रहा होगा, तो ये इस तरह से ऐसे इंटेंसिटी बन रही होगी, वेक्टर E1। कोई डाउट बेटा, ऐसे प्लस चार्ज इज क्रिएटिंग इंटेंसिटी वेक्टर E1 एट एम। अगर प्लस चार्ज के कारण प्रोड्यूस्ड इंटेंसिटी पॉइंट एम पर सपोज करें वेक्टर E1 है, एनी प्रॉब्लम? प्लस चार्ज हमेशा पॉइंट की ओर इंटेंसिटी बनाता है, तो इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय प्लस क्यू चार्ज एट एम इज वेक्टर E1 लाइक दिस, ऐसे होगी। इफ इट इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, अगर ये भी प्लस चार्ज होता तो इस चार्ज के कारण एम पर प्रोड्यूस इंटेंसिटी ऐसे आती कि नहीं? अगर ये एम जो है ये पॉइंट ए पर रखा हुआ चार्ज प्लस होता तो इसके कारण एम पर इंटेंसिटी ऐसे बनती, बट इट इज नेगेटिव चार्ज, तो जो ये चार्ज इंटेंसिटी बनाएगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट, माने टू द चार्ज, ऐसे पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो if vector E1 is the intensity produced by plus Q charge at m and vector E2 is the intensity produced by minus Q charge at m, इस चार्ज के कारण जो बनी इंटेंसिटी होगी वह जो है चार्ज की ओर होगी, पॉइंट की ओर नहीं होगी। ये इस तरह से वेक्टर E2। ओके बेटा, इट्स फाइनल, फिगर क्लियर हो जानी चाहिए। minus q and plus q both charges are producing intensity of electric field at point m. If vector E1 is the intensity produced by plus q charge, then its direction vector E1 is like this in the direction of m, m की ओर होगी। And if minus q charge is producing intensity of electric field, its vector E2, its direction must be in the direction of charge, ये पॉइंट की ओर नहीं होगी क्योंकि माइनस चार्ज है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस तरह समझ में आया बेटा? अब यहाँ पर देखो जरा, हमें वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों पता लग गया, ये पता लग गया और ये पता लग गया। हमारा सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इन दोनों वेक्टरों को वेक्टर तरीके से ऐड कर दें, फाइनल इंटेंसिटी आ जाएगी। इतना समझ आया बेटा? E1 and E2 both are the intensities produced by plus Q and minus Q charges at point M, which is in coaxial line, which is at coaxial state. Is that clear? अब बेटा इन दोनों को ऐड करने के लिए एक मेथड अप्लाई करेंगे वेक्टर सिस्टम का। ज्योमेट्री यहाँ पर है, थोड़ा ज्योमेट्री ध्यान देना। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रा कर लें, AB के परपेंडिकुलर लाइन है ये, कोई किसी को दिक्कत? It is a line perpendicular to AB.
ए बी के परपेंडिकुलर है। थोड़ा मैथ अप्लाई करेंगे। लुक हियर, इट इज एल एंड इट इज आर इन ट्रायंगल MOB, OMB। ट्रायंगल OMB में देखो जरा सभी लोग, लुक ट्रायंगल OMB, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, मींस राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर, हेंस इट विल बी हाइपोटेन्यूस। और इसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं कैसे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। B to M मतलब प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट तक की डिस्टेंस। हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस इज द अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस। ओके, तो बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां देखो बेटा, एल स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से बीएम पा गए। इस वैल्यू ऑफ बीएम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल में चलो बेटा, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OMA, अगर ये वाला जानना चाहे AM की वैल्यू, AM विल बी आल्सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कहने का मतलब AM और BM दोनों आ गया, दोनों सेम सेम आया बेटा। AM इक्वल BM इक्वल अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, माने ये डिस्टेंस हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, ये डिस्टेंस भी हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। एनी डाउट? इज दैट क्लियर एवरीथिंग? सबको सब कुछ क्लियर है बेटा? नाउ वी हैव टू ट्रायंगल। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ये है और एक ये है। लुक दीज टू ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल का देखो, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस स्क्वायर। दिस साइड इज आल्सो इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस साइड इज कॉमन साइड फॉर दीज टू ट्रायंगल्स। नहीं समझे? दोनों ट्रायंगल में सारी साइड एक दूसरे के इक्वल है, साइड 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 मींस बोथ ट्रायंगल आर कांग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कांग्रुएंसी लग रही है ना? यस यस यस, साइड साइड साइड। अगर दो ट्रायंगल ऐसे हो जिनकी सारी साइड सेम हो, सारे एंगल सेम हो, या साइड एंगल साइड सेम हो, या एंगल साइड एंगल सेम हो, तो उन्हें हम कांग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं ना। तो these triangles become congruent। समझ में आ रहा बेटा congruent क्यों है? ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये कॉमन है। तो ट्रायंगल AOM एक congruent ट्रायंगल BOM, दोनों ट्रायंगल congruent है, और जब ट्रायंगल congruent होते हैं तो उनकी सारी साइड सारे एंगल सेम होते हैं। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल सेम होगा कि नहीं बेटा? अगर हम इसको थीटा सपोज कर लें तो इट मस्ट बी थीटा, दोनों थीटा हो जाएंगे नहीं? तो यहां लिख दे रहे हैं, सो ये वाले एंगल का नाम बोलो, एंगल MBO, और ये वाला एंगल MAO क्या होंगे? सेम होंगे, और इनको मान लेते हैं थीटा। लेट दीज एंगल्स आर थीटा। समझ आया ज्योमेट्री बेटा? ज्योमेट्री क्लियर हुई? ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा। इज दैट क्लियर बेटा? क्लियर हो गया कि नहीं? अब हमारा यहाँ वेक्टर वाले सिस्टम पर देखो, ये लाइन और ये लाइन बोथ आर पैरेलल। तो ये कैसी लाइन हुई? ट्रांसवर्सल लाइन। दो पैरेलल लाइन अगर कहीं हो, कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो लाइन के इधर उधर बने एंगल अल्टरनेट इंटरनल, ये देखो अल्टरनेट एंगल हुए दोनों क्या होंगे? सेम। तो ये एंगल और ये एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल के कारण हो गए सेम। और बेटा याद करो कि if two parallel line are cut by any transversal line, तो करस्पॉन्डिंग एंगल लाइन के एक ही साइड के एंगल ये और ये भी सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो यहां देखो, ये एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये लाइन कैसे लाइन है? पैरेलल। तो ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन द्वारा कट हो रही है, तो एक ही साइड का एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे।
अगर इफ इट इज थीटा देन इट आल्सो बिकम थीटा। थीटा हो जाएगा कि नहीं? क्यों थीटा हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो अब ये दोनों वेक्टर, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का फाइनल एंगल कितना हो गया फिगर से? 2 थीटा। इज दैट ओके? ज्योमेट्री है बेटा। यहाँ देखो वेक्टर प्रोसेस भी हुआ और ज्योमेट्री भी यूज हुई। इसका कोई नाम ड्रा कर दे। ये इस लाइन का नाम एक्स वाई, और इस चीज को यहाँ राइट डाउन कर दे। ओके, कौन सा? देखो एंगल एक्स एम ए इक्वल टू एम ए बी क्यों इक्वल है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है बेटा। और ये एंगल सेम है। इस एंगल का भी नाम दे दो, यहां जेड गाइड कर दे रहे हैं। देखो एंगल जेड एम एक्स, जेड एम एक्स इक्वल टू एंगल एम बी ए। कौन सा एंगल है बेटा? ये समझ है बेटा? करेस्पॉन्डिंग एंगल किस कलर से होंगे? तो वेक्टर E1 और वेक्टर E2 दोनों के जो है मिडिल एंगल हमारे पास 2 थीटा आ गए। और एंगल मिडिल निकाले क्यों बेटा? क्योंकि जो है वी हैव अ प्रोसेस फॉर एडिंग वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड करने का हमारे पास एक प्रोसेस है। 11th की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, याद नहीं है, भूल गए हैं, याद दिला रहे हैं। इफ वी हैव 2 वेक्टर, अगर हमें 2 वेक्टर दे दिया जाए एंड वी हैव टू ऐड देम, उन्हें ऐड करना हो, रिजल्टेंट मालूम करना हो, तो याद करिए 11th की क्लास। इफ वी हैव 2 वेक्टर, वेक्टर P एंड वेक्टर Q एंड बेंटेड एंगल अल्फा, 2 वेक्टर अगर P और Q की मिडिल एंगल अल्फा हो तो उनका रिजल्टेंट R स्क्वायर विल बी गिवन बाय P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। याद आया? नहीं याद आया बेटा? 11th में डेरिवेशन कराए थे। यहां पर देखिए जरा, 11th की क्लास में डेरिवेशन कराए थे। इफ वेक्टर P and vector Q are the 2 vector bented at angle alpha, दोनों के बीच अल्फा का एंगल हो, तो इनको जब जोड़ा जाता था तो ऐसे देखो पैरेलल लाइन ड्रा करते थे, पैरेललोग्राम बन जाता था और ये ऐसे रिजल्टेंट बनता था। तो रिजल्टेंट R will be given by R स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ये हमने डेरिवेशन कराया था, आपको याद है बेटा? नहीं याद है तो याद आ जाना चाहिए कि इफ वी हैव गिवन 2 वेक्टर्स, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, and alpha is if their middle angle, then sum of resultant of these vectors R will be given by R square equal P square plus Q square plus 2PQ cos alpha। तो यहाँ देखो बेटा, 1 वेक्टर E1 है, दूसरा वेक्टर क्या है? E2। दोनों को हमें ऐड करना था, तो हम इसीलिए दोनों के बीच का क्या निकाल लिए? एंगल। दोनों के बीच का एंगल फिगर से कितना दिखाई दे रहा है? 2 थीटा। और अब यही फार्मूला लगा देंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर वेक्टर E हो तो E स्क्वायर इक्वल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा लगा देंगे, यूज कर देंगे। आ जाएगा कि नहीं बेटा? अच्छा, एक थोड़ा सा जो है वेक्टर एनालिसिस का सिस्टम ही और अप्लाई करते हैं, गौर से देखिए। वेक्टर एनालिसिस का सिस्टम याद करिए। फॉर द एडिंग ऑफ 2 वेक्टर, अगर 2 वेक्टर ऐड करना हो तो सिस्टम क्या होता है वेक्टर ऐड करने का? भूल गए होंगे आप लोग। वेक्टर ऐड करने के 3 सिस्टम आपको 11th की क्लास में पढ़ाया जाता है। देयर आर 3 प्रोसेस फॉर एडिंग वेक्टर्स। फर्स्ट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ, सेकंड इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ एंड थर्ड इज पॉलिनोमियल लॉ। याद आया बेटा? तो ऐड कैसे करते हैं वेक्टर? पहले पहला वेक्टर ड्रा करते हैं गिवन डायरेक्शन में। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को गिवन डायरेक्शन में ऐड कर देते हैं, दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे को, तीसरे के चौथे को, फिर उसके बाद पहले वाले वेक्टर के टेल पॉइंट को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। ये जो वेक्टर आता है इट इज रिजल्टेंट वेक्टर। याद आया बेटा? तो अब यहाँ वेक्टर E1 और वेक्टर E2 को जोड़ना हो
तो सबसे पहले ये वेक्टर E1 ड्रा कर दिए, कोई डाउट किसी को? वेक्टर E1 के हेड से कौन सा वेक्टर स्टार्ट कर दें? दूसरा वाला। तो वेक्टर E1 का हेड ये है और दूसरा ऐसे है, तो ऐसे ये दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर दिए, ये इस तरह से। इट इज यू कैन से वेक्टर E2। पहला वेक्टर वेक्टर E1 ड्रा किए, उसके जो है हेड से दूसरा वेक्टर E2 ड्रा किए। अब पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ऐसे मिला दें तो यही रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर E। हम चाहे तो इसको ऐसे ड्रा कर दें, ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अगर ये E1 है तो ये E1, ये E2, E2 और E1 का ये ऐड है, E1 और E2 का ये रिजल्टेंट है। वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर E, हमें वेक्टर E ही मालूम करना है। तो देखो बेटा कितना कचर पचर है इसमें, कॉन्सेप्ट बहुत डिस्टर्ब है ना बेटा। तो अभी कैलकुलेशन नहीं स्टार्ट हुआ, ये बेटा पूरा इसका फुल लॉजिक अभी तक एक्सप्लेन किए, कॉन्सेप्ट बताए, अभी अब कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। तो इतना हमारे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रहा होगा कि कठिन है सर, जो कह रहे थे सच कह रहे थे। नाउ अगेन लिसन मी, और ये इतना टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं तो हम आपको इसको मिटा के कैलकुलेशन करें। अभी कैलकुलेशन नहीं रन हुआ है, बिल्कुल कहीं नहीं है। फॉर फाइंडिंग intensity of electric field by any electric dipole in coaxial state or in equatorial point, we have suppose an electric dipole AB having charges minus q and plus q, placed at A and B। मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB है, चार्ज माइनस q और प्लस q से बना हुआ, A और B पर दोनों चार्ज रखे हुए हैं। AB, a line joining them is the axis of dipole and O is the center of dipole. Distance of charge plus q and minus q from the center O is A. Okay. Let us suppose that a perpendicular bisector line OM, which is bisecting AB and perpendicular also. एक लाइन OM की कल्पना कर रहे हैं जो AB को बाइसेक्ट कर रही है, दो डबल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मींस इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर भी है। एंड लेट अस सपोज दैट अ पॉइंट M, एक पॉइंट M को मानते हैं, सपोज करते हैं, विच इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक पॉइंट M की कल्पना करते हैं जो इस OM लाइन पर सेंटर O से R डिस्टेंस पर है। M इज अ स्पेशल पॉइंट where we have to find out intensity of electric field by this dipole in equatorial point or in coaxial state। M ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, इक्वेटोरियल लाइन या जो है कोएक्सियल स्टेट में। ओके बेटा, अब हमारा कॉन्सेप्ट दौड़ने लगा। कॉन्सेप्ट दौड़ने लगा मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी डायपोल में कितने चार्जेज होते हैं, दोनों चार्जेज जो है क्या बनाएंगे, अलग अलग इंटेंसिटीज, और उसी को हम क्या कर लेंगे, वेक्टर साइन। तो लेट प्लस क्यू चार्ज इज प्रोड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 एट M। मान ले रहे हैं कि इस पॉइंट M पर इस चार्ज के द्वारा कितना इंटेंसिटी बनती है, वेक्टर E1, एंड माइनस क्यू चार्ज क्रिएट इंटेंसिटी वेक्टर E2 एट M। दोनों चार्ज यहां पर इंटेंसिटी बना रहे हैं, एक वेक्टर E1 बना रहा है, दूसरा कितना बना रहा है बेटा, वेक्टर E2। वेक्टर E1 प्लस चार्ज के कारण बनी है, इसलिए ये पॉइंट की डायरेक्शन में होगी। तो देखो इट इज वेक्टर E1, हमने आपको बकायदा फिगर दिखाई है, वेक्टर E1 की पॉइंट M की ओर है। ओके, अगर ये प्लस होता तो ये वेक्टर E2 ऐसे M के बाहर की ओर होते, बट इट इज माइनस, hence intensity produced by this minus charge will be in the direction of charge minus q। M की ओर होगी इसकी डायरेक्शन, अरे पॉइंट चार्ज की ओर। तो ये वेक्टर E2 बन गई बेटा, दो इंटेंसिटी बन गई, वेक्टर E1 और वेक्टर E2। इसी का अगर हम वेक्टर सम निकाल लें तो हमारे पास कंप्लीट इंटेंसिटी आ जाएगी। वेक्टर सम निकालने के लिए हमने पहले इस लाइन के पैरेलल लाइन एक ड्रा किया, XY। वेक्टर एडिशन का हमारा तरीका होता है कि पहले पहला वेक्टर ड्रा किया जाए और पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये वेक्टर E1 ड्रा था, वेक्टर E1 का ये हेड है, यहां से बेटा वेक्टर E2 गिवन डायरेक्शन में जैसे E2 था वैसे ड्रा कर दिए, और अब वेक्टर E1 के टेल पॉइंट M को वेक्टर E2 के हेड पॉइंट S से मिला दिए, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर E आ गया। यहां बेटा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिए, सबको क्लियर?
फिगर समझ में आई बेटा। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाए। लुक दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल MOB, it is a right angle triangle, okay, hence it is base, it is perpendicular, and it BM will become hypotenuse, and the value of hypotenuse given by Pythagoras theorem, under root perpendicular square plus base square, hence BM will be clear, under root R square plus L square. Similarly, triangle AMO is also right angle triangle, and value of AM is also given by Pythagoras theorem, under root R square plus L square. Okay बेटा, AM and BM both are same, और इन दोनों ट्रायंगल में हमने लिखा नहीं है, कॉन्सेप्ट में समझो दिमाग से। दिस साइड इज दिस साइड इक्वल, दिस साइड इक्वल टू दिस, एंड इट इज कॉमन साइड, हेंस बोथ ट्रायंगल आर, यहाँ लिख दिए बोथ ट्रायंगल क्या हो गए बेटा, हियर ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOM। एनी डाउट बेटा? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे एंगल, सारी साइड सेम होती हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। नेम बोलो इस एंगल का, MBO। कहाँ लिखे हैं? MBO। इस ट्रायंगल का नाम ले लो MAO। क्या हो गया बेटा? सेम, और मान लेते कितना हो गया, थीटा। अब बेटा हमने ज्योमेट्री लगाया यहां से, ये हमारी करस्पॉन्डिंग लाइन है, ओके, ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी कौन सी लाइन है, और ये XY और AB पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन को कोई जो है ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं। तो इधर ये दोनों एंगल कौन कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। नेम बोलो इनका, इसका नेम है XM, ZMX ये, और इसका नेम MBA, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल, ये एंगल कैसे सेम है बेटा? अल्टरनेट एंगल। नेम देखो XMA MAB अल्टरनेट एंगल। इट्स नाउ क्लियर, दोनों एंगल पता लग गए। कहीं कोई डाउट बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है ना? अब हम वेक्टर सम निकालेंगे, वही जो भी जो है पैरेललोग्राम ला बता रहे थे, R स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ का असल था। तो हम पहले दोनों E1 E2 अलग अलग निकाल लें, फिर उसके बाद रिजल्टेंट आ जाएगा। समझ आया यहाँ तक बेटा? फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? लेट AB इज an electric dipole, AB इज an electric dipole, मान लेते हैं AB क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, हैविंग चार्जेज -Q एंड +Q। -Q और +Q चार्ज से बना हुआ जो है कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। AB कितना है बेटा? AB is 2L. So, moment of electric dipole P will be given by P equals Q into 2L. ये हम लोग जानते हैं। और बेटा सपोज कर ले कि हम एक पॉइंट है कोई जेड स्टेट में, सेंटर से R डिस्टेंस पर, जहां हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो लिख दे बेटा, लेट M is a point at a distance कितने डिस्टेंस पर? R from the center in coaxial state, coaxial state में है, where we have to find out, इसी जगह तो हमें निकालना है बेटा, क्या? We have to find out final intensity। समझ है बेटा? फिगर का डिस्क्रिप्शन हो रहा है। और क्या है बेटा? E1 और E2 दो इंटेंसिटीज है, प्लस और माइनस Q चार्ज पर M के कारण। लेट वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 आर द, मान ले रहे हैं कि वेक्टर E1 और वेक्टर E2 ये दोनों इंटेंसिटी है। E1 and E2 are the intensities at M
कहां पर है बेटा, एम पर, प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। उसके बाद का कैलकुलेशन आपने देखा ही है, कोई डाउट पहचान? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई चार्ज प्लस क्यू। ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसमें जितना